We started with the basic design thinking, so invention, innovation, entrepreneurship, so everything. So yesterday, day one तो a problem का ज़रूरत क्या है, problem statement so क्या है, so इसका importance क्या है, so we have gone into everything. And the first step of design thinking, empathy. So we asked you to prepare empathy map also. So आप सब empathy map create किया था. So wallet के लिए और bag के लिए. So after empathy map, so yesterday fully we discussed regarding problem statement formulation. और problem statement canvas जो है, so 6 parameters, context, कब हो रहा हो problem, root cause क्या है वो problem के लिए, और alternatives कुछ है क्या, और alternatives में भी क्या क्या problems है, and customer कौन है, ये पूरा डिस्कशन किया था हम. सो उसके बाद सर ने एक्सप्लेन किया था, सो व्हाट एग्जैक्टली इज कस्टमर सेगमेंटेशन, हु इज़ कस्टमर एंड हु इज़ बायर, एंड देन डिफरेंट कस्टमर सेगमेंटेशन, सो वो भी डिस्कस किया था. और उसके बाद कस्टमर पर्सोना, द आइडियल कस्टमर ऑफ आवर प्रोडक्ट और ऑफ आवर सर्विस. सो आइडियल कस्टमर का पर्सनैलिटी सो कैसे होता है, सो वो सब हम देखा था. और कस्टमर सेगमेंटेशन भी. So we should not say that my product or my service will be applicable, will be purchased by everyone in the market or everyone across the places. So we need to segment them, and accordingly, so based upon segment, our solution also will change. Then at last, so in the evening, so we have seen one particular example also. So where there were potholes on road, और उसका solution कैसे करना चाहिए, so वो भी discuss किया था हम. Now the next comes, so design thinking, empathy is done, then defining the problem statement वो भी हो गया, और उसके बाद ideation मतलब so brainstorming, ना तो group discussion, ना तो survey, so to collect the best ideas, best possible ideas, best possible solutions. Now solution तो so we have explored few solutions. Now how to present this solution to the other person. सॉल्यूशन अभी हम सो आइडिएशन में मल्टीपल आइडियाज़ आया था हमको. सो ये मल्टीपल आइडियाज़ पे सो वी हैव फाइनलाइज्ड वन पर्टिकुलर आइडिया एंड वी स्टार्टेड सो बिल्डिंग द सॉल्यूशन. And assume that to complete this solution it may take 6 months of time or 1 year of time. But meanwhile, if you want to display our solution, if you want to convey our solution to other people, I am working on this solution, I am working on development of a mobile application, or I'm working on development of a robotic arm, or I'm building a house. So for this to show our idea, to convey our idea to the other people, so we need to go for prototypes. Or I'll tell you one small example. So prototype so के लिए. So assume that हम एक एक 2 BHK घर बनाने के लिए प्लान कर रहे. सो पहले तो विल परचेस वन लैंड, सम 200 स्क्वायर यार्ड्स और 400 स्क्वायर यार्ड्स. सो लैंड तो परचेस हो गया. सो परचेस हो जाने के बाद क्या करते घर में डिस्कशन होता है. सो कैसे कंस्ट्रक्शन करना, आई मीन बिल्डिंग प्लान कैसे बनाना. तो रफली घर में बैठ के सो फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स और चिल्ड्रंस, एवरीवन विल सिट एंड समवन विल टेक आउट ए रफ पेपर. In that rough paper, using some pen, they'll start drawing. So this will be layout. In this, so देखो इधर two bedrooms आएगा और hall बड़ा hall चाहिए और kitchen इधर आएगा. So around so house, so there will be open space also. So we can so have from gardening and all. And this is a gate, and we need gate from east side, and this many doors and all. So this is also a prototype, but it is drawn roughly on a rough sketch. Now if we give this prototype to a builder who is going to construct our house, so he says, sir, इसमें तो measurements नहीं है. What should be the dimensions of your hall? What should be the dimension of your bedroom? What should be the dimension of puja room or kitchen? So इसमें तो dimensions नहीं है, कैसे construct करना हम. So if I know the dimensions, then I can give you we can build properly. If dimensions are not given, so I cannot do it properly. Just if you say, I want big hall, I want so big bedrooms, so nice and nahi chalta waisa. Then what we will do, we will approach an architect.
For architect, we'll say that, so hall should be big, so this much dimension. And then, so kitchen should be this, and 2 bedrooms, 1 master bedroom, 1 child bedroom. Now he will take out a big drawing sheet, and then he will draw as per the scale. He will say that finally your hall will be this particular dimension. So this many square feet. Kitchen will be this square feet, and bedroom will be this square feet. So it will show to us. And again, so we'll take this chart to home and we'll discuss. Okay, hall itna square feet aa raha hai, so maybe some 200, so 200 SFT, 300 SFT. Is it okay? Or shall we increase it? Or isko decrease karte? Kaise? So that's okay. So if that is fixed, now what we'll do, so we will give this particular drawing sheet to the builder. Now builder will say, yes sir, I got all the dimensions properly, so shall I start construction. Now assume that, so आपके घर में कोई kids है, so kids 6 साल का kids, 7 साल का kids, और एक kids अगर ये drawing sheet देखा तो full drawing sheet, so they will say, I cannot understand everything, मेरे को कुछ भी समझ में ना आ रहा है. So किधर bedroom है, किधर so किधर bedroom है, किधर hall है, so हमारा playing के लिए जगह किधर है. So I cannot understand anything from this particular drawing sheet. Then again, so we will approach the architect. Can you make any 3D video for this? 3D video for this particular entire house. Then architect will say, yes sir, so give me 1 month of time. I'll make you 3D design along with colors, everything, interior design, everything. So he takes 1 month of time, or else 1.5 months of time, and he will design a 3D video for our entire house. He will send that particular 3D video through WhatsApp and we will show it to our kids. Now kids will see, and kids will say that, so मेरा child bedroom को ये color नहीं चाहिए, मेरे को rainbow colors चाहिए. So again, change the design. So we'll ask the architect, so change the colors, design and everything. So finally we got some video also. And now the child asks, so मेरे को कुछ 3D model मिलता है क्या? ये सब house के लिए 3D model, so देखने के लिए अच्छा होगा and समझने के लिए भी अच्छा रहेगा. So we'll ask again, so the vendor, so the architecture, so can I have a 3D prototype? So to see my house completely. Yes, he says, again it takes so 2 more months of time, then finally we'll get. So now, so इस example पे, जो पहले हम start किया था, so drawing the complete layout on a rough sketch, small paper, that is also a prototype. Then the one which is drawn by the architect on a drawing sheet, that is also a prototype. 3D video भी prototype है, और 3D model भी prototype है. So all are prototypes only. But the difference क्या है कि, so कौन सा prototype कितना close है real finalized product से. जो 3D model है, 3D model, so that is very much close. जो पहला सा rough sheet में draw किया था, so it was not close. It was not close. And similarly, so we asked a few students to design a mobile application, a website for so placements portal. Websites for placements portal. So then they come up, sir, so क्या चाहिए आपको starting loading page पे, front page पे. University का नाम आना चाहिए. Then there should be some, so login portal, username, password, then student will log in into that. So login होने के बाद क्या चाहिए? So these are the features I require. Some student details are required. So student performance is required. So then how many companies attending it is required. Then also companies, how many companies are coming. So क्या है कि, so design करने के पहले, so what we will do is he will draw all these particular things on a layout, so small paper, and he will show it to me. So that's fine. Then for mobile applications only, so there will be some tools also. Some Figma tool बोल के रहता, Canvas, not a Figma tool. So tools, so he can add colors also for that particular mobile application. So this is also a kind of prototype. Now अगर हम एक हर example को, so if we get back to the example of a house, so house construction started, the builder is constructing it properly, the foundation got completed, the pillars were laid, and then everything got started. After 6 months, so initially the house, the basic house model got completed, electricity supply is also given, the water supply is also given, tap. But interiors were not completed. And also the gate, so the gate and also the lawn, so all those are pending.
Now, because of some urgency, so we want to enter into the house immediately. We want to enter. So the final house will have the interiors, it will have the compound wall, it will have a very good gate, and also it will have the lawn facility, everything will be there. But here in this, after 6 months, all these facilities are not required, but basic facilities got completed. Basic facilities matlab electricity supply was given, construction got completed, electricity मिल गया, और tap water वो भी मिल गया, और doors और सब कुछ आ गया. So now it is ready to use, but it is not having all the features of the final product. So इसको हम क्या बोलते हैं? Minimum viable product. Minimum viable product. So assume that there are 10 features. Out of the 10 features, there were 6 features or 5 features. The remaining features are not missing. But even though the remaining features are not included, I can use it to some extent. So उसी को क्या बोलते हैं? So minimum viable product बोलते हैं. So here, and so prototyping के लिए, so why we go for prototyping? बोले तो the example which I gave, to understand how exactly our output looked like. And in designing this, so to make modifications early. So before construction only, if there are any modifications, if you want a big hall, so or if you want to reduce the hall size and if you want to increase the bedroom size, so we can do it early only. So so assume that अगर ये drawing नहीं है तो हमारे पास drawing नहीं है, हमारे पास measurements नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस so we have purchased a land of 400 square yards, and हम builder को बोला था चलो बनाओ मेरे को, so 2 bedroom बनाओ, एक hall बनाओ, एक kitchen बनाओ. Now he will start constructing as per his own wish. As per his own wish. But when we give him the proper exact dimensions of everything, the prototype, then we'll get very close thing. And also, once he gets that particular 3D model video and all, the builder who is there, he knows, okay, they want some colors like this, and they want this tiles, and I need to bring these tiles from so and so area. And for construction of this particular house in 6 months, I need 20 workers. So time be reduced hoga, and also we need not do changes after construction, we need not repaint it, or we need not break some walls and reconstruct it. All those things can be done initially itself. So now a confusion either so that students face here is they get confused between the prototype and the final product. Prototype, final product, and the minimum viable product. Prototype is never a final product. Prototype is never a final product. Prototype, it can be a paper-based, or it can be cardboard-based, or it can be in our electronics lab. Atal Tinkering Labs है, उसमें Arduino boards मिलता है, और electronic components भी रहता है. So that is only a working model prototype. It is not a final product. So we should not spend too much of time on prototype itself. Sir, मेरे को 6 months चाहिए, 1 year चाहिए prototype बनाने के लिए. No. So it is only to convey our idea, so to the other persons. And then minimum viable product. So minimum viable product is nothing but a working model prototype which will have features, some features of the real product. So that is nothing but a minimum viable product. So these are the our हम advertisements में देखते हैं. So advertisements, weight reducing advertisements. So a person will come. So he'll say that initially I am 110 kgs. But after doing so and so, after taking these pills or medicines, I got reduced up to 60 kgs or 65 kgs. So that is also a prototype. Okay, so role play or simulation based. 2 or 3 people will come and they will explain about their solution or service. That is also a prototype. Prototype matlab physical एक product. So it need not be a physical product. Device mockup. Wireframe terminology इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के लिए यूज किया होता है. वायरफ्रेम टर्मिनोलॉजी, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं तो. और स्टोरी बोर्ड आर सिनेरियोस. So small kids, when they are in first class or second class, so if they want to explain some stories, they will be drawing something on the paper. So this is a house and there's a person here and he'll be moving here. So that is also a prototype. All are prototypes online.
फिडिलिटी मतलब कितना मिलता जुलता है प्रोटोटाइप रियल प्रोडक्ट से लेकर, सो हाउ क्लोज इट इज. सो इफ द फिडिलिटी इफ इट इज़ हाई, सो मतलब वो बिल्कुल क्लोज है फाइनल प्रोडक्ट से. इफ इट इज़ लो, सो इट इज़ नॉट वेरी क्लोज. द पेपर, सो इन द एग्जाम्पल दैट वी हैव टेकन, जो एग्जाम्पल में पहले द पेरेंट्स ड्रॉ किया था, द घर का पूरा लेआउट, वो क्या है, लो फिडिलिटी प्रोटोटाइप. और ये 3D मॉडल वीडियो और एल्स डायरेक्ट मॉडल, वो क्या है, हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइप्स. सो अभी हम क्या करना है, जो हमारा सॉल्यूशंस आ गया, कल आप डिफरेंट सॉल्यूशंस बताया था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया और सॉल्यूशंस भी बताया. सो उस सॉल्यूशंस को वी नीड टू मेक प्रोटोटाइप्स. We need to break prototypes. So you can draw something which is related to your solution. So first one, if you want a paper prototype, you can draw it something. Or else with the help of story also, with 2 or 3 images also, you can convey आपका solution convey कर सकते हैं. So since there are 5 members, if you want to go for role play based, वो भी कर सकते हैं. और एक बात इधर, simulation based prototype. Simulation बोले तो अगर ए ड्रग्स कंपनी और मेडिसिन मेकिंग कंपनी, उसका प्रोटोटाइप क्या होता है, सिमुलेशन ऑफ केमिकल्स. दे विल मिक्स सम केमिकल्स एंड दे विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल्स, और दे विल डू दिस सिमुलेशंस इन सॉफ्टवेयर ऑल्सो. सो दैट इज ऑल्सो ए प्रोटोटाइप. बिफोर रिलीजिंग द प्रोडक्ट और बिफोर फाइनलाइजिंग द फॉर्मूला ऑफ ए ड्रग, so they will mix different chemicals and they simulate it. They'll test whether they are getting properties or not. So that is simulation based. सो ये एक्टिविटी हमें ये करनी है. अभी जैसे आपने अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था, आपने सॉल्यूशन भी आइडेंटिफाई किया, आपके कस्टमर कौन है वो भी आइडेंटिफाई किए. अभी नेक्स्ट स्टेप जो किसी भी स्टार्टअप की जर्नी में आती है, वो सर ने अभी एक्सप्लेन की है कि प्रोटोटाइप डेवलप करना है. तो वो प्रोटोटाइप आपको अभी डेवलप करना है आपके आइडियाज़ के लिए. तो जस्ट आप पेन पेपर यूज़ कर सकते हो, आपके पास चिट है, जैसे कोई भी एक आइडिया बता सकता है. आपकी क्या आइडिया है, लेआउट बनाया है, मतलब आपका प्रोटोटाइप रेडी है. तो आप क्या बता सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं प्लीज़. सभी आदरणीय सम्मान्य जनों को मेरा प्रणाम. काश मैं यदि सीईओ होती तो मैंने कुछ कल्पना आप हो मैंने कल्पना करी है कि मेरी कंपनी कुछ इस तरह से मैं बिल्डअप करती. चूँकि हम जिस एरिया से हैं, किसान परिवार से हैं, तो उसी से संबंधित मैंने कच्चा मटेरियल लिया है और मेरे आसपास मैंने जो समस्या फिल करी है उसी पे मैंने लेआउट पूरा तैयार किया है. जैसे मेरे ग्रुप या कंपनी का नाम रखा है किसान फ्रेश के नाम से, और उसमें समस्या जो मैंने देखी हमारे आसपास के लोगों की, उसमें ताज़ी और गुणवत्तापूर्ण सब्जियां नहीं मिलती है. दूसरा ये कि जितनी भी वर्किंग वूमेन है उनको 6 बजे 7 बजे जब अपने घर पहुंचते हैं तो सबसे बड़ा दिमाग पे लोड रहता है कि घर जाके आज हमें बनाना क्या है और जाके सब्जी काटनी है. ये सबसे बड़ा मुझे ये फील हो रहा था. और मेरे जितने भी स्टाफ मेंबर हैं या जिनसे भी मैं मिलती हूँ, वो यही कहते हैं कि मैम अब घर जाके आज तो सब्जी खरीदनी है मार्केट से, फिर जाके उसको तैयार करना है और बनाना है और समय भी बचाना है, क्योंकि 8-9 बजे के बाद हमें हमारे बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना होता है. तो ये सब चीज़ें मैंने जब आसपास देखी तो मैंने आपको बताया कि इस तरह की समस्या में सामना करना पड़ता है. तो उसके लिए मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना हम किसान फ्रेश नाम की कंपनी की शुरुआत करें, जहाँ सब्जियाँ ताज़ी कटी हुई ऑर्डर पर हमें उपलब्ध हो जाए. हम 2 घंटे पहले ऑर्डर करें और हमें बढ़िया से अच्छे पैकेजिंग में तैयार सब्जी मिल जाए. तो उसका समस्या मैंने आपको बताई. कस्टमर सेगमेंट्स में आयु जो वर्ग होगी वो 25 से 60 वर्ष सारी वर्किंग वूमेन होगी, और जो बच्चे, बहुत सारे छात्र और बहुत सारे स्टूडेंट, या ये कहें कि बहुत सारे बाहर रहने वाले बैचलर्स जो रहते हैं, वो भी घर का भोजन बना हुआ खाना पसंद करते हैं, तो उन्हें भी इस तरह की दिक्कत आती है. तो ये लोग हो सकते हैं. ऑफिस के कारण बाजार में न जाने वाले लोग, इस तरह के लोग मेरे कस्टमर होंगे. उसके बाद में जब कंपनी की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि हमें
पूरी प्लानिंग करनी है कि हमें किस तरह से किसानों से सब्जी खरीदना है, उसे कहाँ स्टोर करना है और उसकी पैकेजिंग कैसी करनी है। तो सबसे पहले हमारी कंपनी का हमें पंजीयन करवाना होगा, लाइसेंस बनवाना होगा और कस्टमर का भरोसा जीतना, जिसके लिए कहते हैं कि माउथ पब्लिसिटी सबसे बेस्ट होती है। यदि मैंने अपना प्रोडक्ट अच्छा दिया है और वाजिबल रेट में, मतलब कम कीमत में, जितने कीमत में, मान लो हमने 60 रुपये किलो सब्जी भिंडी की बाहर से खरीदी है, बिना कटी हुई, बिना धुली हुई, यदि मैं उसी रेट में यदि उसे उपलब्ध कराती हूँ साफ करके कटी हुई, तो मुझे शायद कस्टमर का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। हमारे मॉडल की जो हमारा बिजनेस मॉडल जो होगा उसमें कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं, जैसे स्थानीय किसानों से सीधे जुड़ना, उन्हें ऑर्गेनिक खेती करने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित करना, जिसके लिए हम सरकार से भी कुछ मदद ले सकते हैं, जैसे सब्सिडी वगैरह हुआ। उन्हीं से सब्जी जैसे टाइप करते हैं ना हम किसान से कि हाँ हम आपसे, आप इतनी बीघा में सब्जी बोइए, हम आपसे इतना माल पर डे खरीद सकते हैं। इस तरह से कुछ योजना बनाई जा सकती है। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि सब्जियां हमें टाइम पर ताज़ी उपलब्ध हो पाएगी और उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। इसके बाद में सब्जियां जब मैंने खरीद दी तो उसकी ग्रेडिंग करना, मतलब उसकी छटाई करना और उसके बाद में उसे धोकर सुखाकर पैकेजिंग करना। जैसे इसी के अंदर हम एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, फ्रूट प्रोसेसिंग वाला जो रहता है कॉन्सेप्ट है, जिसमें प्रिजर्व सब्जियां रखी जाती है, मतलब सब्जियों को बाद में भी यूज़ किया जाए, उस तरह के भी कुछ हम इसमें लागू कर सकते हैं। पैकेजिंग में हम पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि हमें मार्केटिंग करना है तो मोबाइल ऐप के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप ऑर्डर के साथ में प्रयोग कर सकते हैं। साथ में हम स्थानीय लोगों से संपर्क करके, जैसे ग्रुप बना करके, महिलाओं का ग्रुप बना लिया, जैसे मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो मैं ऐसे बहुत सारे अपने आसपास के स्कूल के टीचरों से परिचित हूँ, मैंने उनका ग्रुप बना लिया और उसमें अपना प्रचार प्रसार कर दिया। इस तरह से मेरा बिजनेस मॉडल होगा। हाँ, इसमें मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ विशेषताएं या कुछ उन्हें क्या कहना चाहिए कि मैं कुछ एडवांस कुछ दे पाऊँ, इसके लिए मैंने कुछ लिखा है। जैसे मैंने कीमत का ही बताया कि मैं मार्केट में जाती हूँ सब्जी खरीदने तो मेरा आधा या 1 घंटा खराब हो रहा है, जिसमें मुझे देखना भी पड़ता है कि मार्केट में कौन कौन सी सब्जियाँ हैं। यदि मैं उनको लिस्ट उपलब्ध करा दूँ कि हाँ मेरे यहाँ पर ये सब्जियाँ उपलब्ध होगी, तो उन्हें एक तो ये समय का बचाव हो जाएगा और कीमत जो कीमत में वो मार्केट से बिना धुली हुई साफ करना है घर आके, उतनी ही कीमत में यदि सब्जी उसको उपलब्ध हो जाएगी तो ये विशेषता रहेगी। दूसरा सबसे मेन है जैविक सब्जियां, जो कि आज थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम सभी किसान परिवार से ही है और सभी जानते हैं करेला, भिंडी, टमाटर में सप्ताह में लगभग 3 बार दवाई छीटी जाती है। मिर्ची, मैं खुद भी किसान ही हूँ, पर जैसे मैंने मजबूरी बताई थी कि यदि हम पेस्टिसाइड्स का उपयोग ना करें तो हम 3 से 4 साल तक तो खेत में लगातार लॉस में जाएंगे। हाँ, लेकिन उसके बाद में हम अच्छे खासे प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हमारे सामने कई तरह के टास्क आते हैं। ये तो एक लेआउट है। जब शुरुआत करते हैं तो हमें कस्टमर की बहुत सारी समस्याएं भी सामने आएगी। हो सकता है कि जो हमने सब्जी पैकेजिंग करके भेजी है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो उसके लिए हमें कस्टमर को कुछ सुविधाएं देनी पड़ेगी, जैसे हमने रिफ़ंड कर दिया उनको या फिर सब्जी बदल के दे दी। तो इसके बिजनेस की शुरुआत हम छोटे स्तर पर कर सकते हैं, कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ करके। हाँ, इसमें मैंने बिजनेस रणनीति मेरी बताई थी कि हाँ किस तरह से हम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें जो कस्टमर पर्सोना रहेगा, मतलब मेरे कस्टमर की जो डिमांड हो सकती है, या ये कहें कि कस्टमर कौन कौन से हो सकते हैं, तो 25 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के सारे वर्किंग वूमेन हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, या मेरे कुछ संपर्क अच्छे हैं या मेरा बिहेवियर अच्छा है तो कुछ होटल या रेस्टोरेंट हो सकते हैं, जहाँ मैंने एक साथ अधिक मात्रा में जहाँ सब्जियों की आवश्यकता होती है मैं उन्हें उपलब्ध करवा सकती हूँ। ठीक सर, इतना ही है। बहुत अच्छा, मैडम पूरा बिजनेस मॉडल बना दिया। पूरा बिजनेस मॉडल आपका रेडी है मैम। और कोई बताना चाहता है? जी सर। सर, जैसा कि हमने कल बताया था कि हम छोटे कस्बों या शहरी कामकाजी लोगों के लिए एक बिजनेस प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम
उनकी छोटी छोटी समस्याएं के लिए जिनके लिए उनके पास वक्त भी नहीं है और ना उनकी देखभाल करने के लिए समय होता है। तो ऐसे लोगों को हम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक बिजनेस प्लान तैयार कर रहे हैं। हमने सोचा है, हमने जो प्लान किया तैयार, उसमें हम गूगल फॉर्म के ज़रिए सारे कस्टमर्स की जानकारी हम एकत्रित करेंगे, जिसमें कस्टमर का नाम होगा, उसका ऑक्यूपेशन रहेगा, उसका मोबाइल नंबर रहेगा। सर आपने इसको कुछ नाम दिया है आइडिया को? क्विक फिक्स। ओके सर। तो कस्टमर की जानकारी हमें गूगल फॉर्म से मिलेगी और इसी तरह से हम एक डेटाबेस तैयार करेंगे कामगारों का, जो कामकाज करने वाले लोग हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, हाउस कीपिंग के लिए जो काम करते हैं, या इस तरह से जो भी काम, जो छोटे मोटे काम हमको करवाने हैं, उनके कामगारों की एक लिस्ट और उनका पूरा डेटाबेस जो है एक गूगल शीट में हम तैयार करके रखेंगे। उसमें उसकी जानकारी, उसको कितने साल काम करते हो गए, उसके पास किस तरह के कोई, अगर उसके पास कोई डिग्री वगैरह है उस काम से रिलेटेड, या उसका कितना अनुभव है, और उसका एड्रेस, उसका फ़ोटोग्राफ, उसका आधार कार्ड वेरिफिकेशन, संभव होगा तो पुलिस वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हमारी उस गूगल शीट में रहेंगी। प्रोटोटाइप ये है कि जब भी किसी कस्टमर को कामकाज की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कस्टमर जो है गूगल फॉर्म भर के हमको बताएगा। गूगल फॉर्म भरेगा अपनी तरफ से, सारी जानकारी, उसको किस तरह का काम चाहिए, कितनी देर का काम है, एक अंदाज़न जो भी उसको काम करवाना रहा, वो सारी जानकारी गूगल फॉर्म में भरेगा। गूगल फॉर्म को हम कनेक्ट करेंगे make.com से, या जो उसको अलर्ट करेगा, make.com अलर्ट करेगा और उससे वो गूगल शीट में सर्च करेगा कि सबसे पास का और खाली कोई कामगार उपलब्ध है या नहीं, जो उसके सबसे पास है, और उसको वो अलर्ट करेगा गूगल शीट से निकाल के, कामगार को अलर्ट करेगा। और कामगार की वो जानकारी जो है व्हाट्सएप बिजनेस API के ज़रिए हम उसके माध्यम से कामगार की फ़ोटो और उसकी जानकारी, मोबाइल नंबर वगैरह कस्टमर तक पहुंचा देंगे, और इस तरह से हम कस्टमर को उस कामगार से मिला देंगे। और ये हमारा बिजनेस प्लान है। हम कस्टमर से भी इसके लिए चार्ज करेंगे और कुछ परसेंटेज हम कामगार से भी लेंगे। ये हमारा बिजनेस प्लान है। कोई सवाल? फॉर एग्जांपल सर, हाँ, प्रोटोटाइप में सर आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे आपका जो पोर्टल है या वेबसाइट है वो कैसे दिखेगा? एक पेन पेपर पे भी अगर बनाते हो आप, तो आपका वो प्रोटोटाइप हो गया। आपका प्रोडक्ट एक्चुअल में कैसे दिखेगा? सर ने जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हमें कि जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले उसका पूरा डिज़ाइन तैयार करते हैं। पहले एक तो पेपर पे डिज़ाइन बनता है, पेपर के बाद में आजकल तो ऑनलाइन जैसे ऑटोकैड से वगैरह वो डिज़ाइन बन जाता है, या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग जब बनती है तो उसका एक मिनिएचर वर्जन बन के एक छोटा सा मॉडल भी बना देते हैं, तो वो उसका प्रोटोटाइप हो गया। तो वो एक स्टैंडर्ड हो जाता है कि उसको देख के हम आगे की बिल्डिंग बनाते हैं। तो सेम जब जो भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो, जैसे भी जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करना चाहते हो, उसका एक प्रोटोटाइप बन सकता है जो आप दिखा सकते हो, जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को फंडिंग मिल सकती है। आजकल स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि स्टूडेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट बना के लेके जाए, प्रेजेंट करे और उसके बाद उसको फंडिंग मिलेगी, या फिर इतना कम भी नहीं कि उसने बस प्रेजेंटेशन बनाया और उसके बेसिस पे उसको फंडिंग मिल पाई, ये नहीं होगा। तो ये बीच का रास्ता है कि आप स्टूडेंट अगर कोई प्रोटोटाइप बनाता है, उसका प्रोडक्ट कैसे दिखेगा, उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, उसका एक आउटलाइन, एक मॉडल अगर उसके पास तैयार है तो उसको फंडिंग मिलने में आसानी होगी, ईजिली उसको फंडिंग मिल जाएगी। वही हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस अगर हम कुछ बनाना चाहते हैं तो उसका प्रोटोटाइप कैसे बनाया जा सकता है। यस मैम, प्लीज़, मैम को माइक, आप आ जाइए मैम। ड्रीम अनलिमिटेड की तरफ से वेरी हैप्पी एंड गुड मॉर्निंग टू यू, सुप्रभात सभी को। जैसे कि हमारा जो बिजनेस आइडिया था, गार्डन प्लांट्स के लिए हम एक स्टार्टअप का प्लान किया था जो प्लांट्स की पूरी तरह से केयर करेगा, सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट, एसिडिटी और किसी टाइप का अगर पैथोजन अटैक है उसके लिए, और बाकी सारी तरह की टोटल प्लांट की देखभाल के लिए। तो हमारा प्रोटोटाइप जो है अभी जो मैंने रेडी किया है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, अभी केवल मॉइस्चर कंटेंट के लिए है। तो
तो ये जो गार्डन का एरिया है उसको हम टोटल 4 जोन में डिवाइड करेंगे, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो इसमें जोन 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों से जो सेंसर्स एक वायर के थ्रू सेंट्रल बॉक्स में जो है वो अटैच्ड है, ये एलईडी से अटैच है और यहाँ पर जो है बजर का सिस्टम है। और ये जो बजर का सिस्टम है अल्टीमेटली ये जो है वो एक पावर एडाप्टर से अटैच है। ये चारों जो जोन है जो हमने डिवाइड किए हैं ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ प्लांट्स। जैसे एक क्यारी एक जोन जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिसमें श्रब्स हैं, मीडियम हाइट के प्लांट्स हैं। दूसरा जो है वो वेजिटेबल हैं, हर्ब्स हैं, और उन हर्ब्स के लिए कितना मॉइस्चर कंटेंट चाहिए होगा ये उसको सेंस करेगा। थर्ड वाला जो है जोन वो अलग टाइप के, जैसे जो हर्बल प्लांट्स होते हैं आयुर्वेदिक, जिनकी की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और इसी तरह से जोन 4 जो है वो ट्रीज अगर आपके उसमें है या और डिफरेंट एक्जॉटिक प्लांट्स हैं ये उनको करेगा। उन सेंसर्स को हम अंडर द सॉइल अंदर डालेंगे और वो सेंस करके कि कितना मॉइस्चर कंटेंट है वो आगे जो है वो इस सेंट्रल कंट्रोलर बॉक्स जो है वहाँ तक सेंड करेगा और अल्टीमेटली जो पावर अडॉप्टर है वहाँ से और फिर सेंस करेगा। बजर भी हम दे सकते हैं, इसे अभी डेवलप करना बाकी है कि बजर देंगे या मैसेजिंग करेंगे या किस तरह से इसको बीपिंग टाइप के डिवाइस बनाएंगे। तो ये जो है टोटल मॉइस्चर कंटेंट के हिसाब से। इसी तरह से एसिडिटी, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, सर्टेन टाइप्स की सॉइल को ही अडॉप्ट कर पाते हैं। अगर ज़्यादा एसिडिक होगी, बेसिक होगी या कुछ प्लांट्स न्यूट्रल सॉइल में ही डेवलप होते हैं तो उस हिसाब से वो भी सेंस करेंगे किस टाइप के पैथोजन का अटैक है, लाइक बैक्टीरियल है, लाइक फंगल है या और किसी अदर पैथोजन का अटैक है, ये उसको भी सेंस करके जो है वो अलर्ट देगा। और देन न्यूट्रिएंट्स का जो आता है, क्योंकि हर टाइप की सॉइल में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो मेन तो जो है वो एनपीके लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम या और दूसरी रिक्वायरमेंट जो भी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन सभी को वो सेंस करके आगे अलर्ट देगा। और मैंने जैसे बताया था जैसा डाटा प्लान होता है अलग अलग, उसी तरह से हमारा भी ये भी प्लान अलग अलग होगा। आपको कितना चाहिए उस हिसाब से इसकी टोटल वो होगी कि रेट कितने हैं। तो दिस इज़ द प्रोटोटाइप। वेरी गुड मैम, गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो एक उनका ये प्रोटोटाइप हो गया क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में डिज़ाइन किया है पेपर पे कि कैसे वो वर्क करेगा, कहाँ कहाँ सेंसर्स लगेंगे, कैसे एक गार्डन का स्ट्रक्चर होगा, वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। वेरी गुड मैम। सर इसी संबंध में कल बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो आए थे हम लोग के पास। हाँ। और उन्होंने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की बात की है और उनको हमने आश्वस्त भी किया है कि यदि किसी भी प्रकार के कोई सपोर्ट की फाइनेंशियल वगैरह हो तो हम आपके साथ तैयार हैं। बहुत बढ़िया मैम। थैंक यू सर। यस सर, सर को दीजिए माइक। हमारा जो टॉपिक था कि बच्चों को गवर्नमेंट की जो फ्री टेक्स्ट बुक जो है वो नहीं मिल पाती, पूरी नहीं मिल पाती। मतलब शुरू में हमको अनुमानित संख्या देना पड़ती है तो उतनी जाती है, बाद में बच्चों की दर संख्या बढ़ती है तो किताबें सबको नहीं मिल पाती। तो उसका सॉल्यूशन हमने ये करा है कि डायरेक्ट में आ रहा हूँ। सॉल्यूशन ये करा है कि मैंने एक फेसबुक पेज बनाया है जिसका नाम है फ्री एजुकेशन। चूँकि फेसबुक पर पीडीएफ नहीं जाती, केवल इमेज जाती है, तो उसमें चैप्टर वाइज इमेज रहेगी। जैसे मान लो मेरे यहाँ 10th मैथ्स की बुक्स नहीं मिली है तो 10th मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, अगर मान लो फर्स्ट चैप्टर में 16 इमेज है तो फर्स्ट चैप्टर नाम दिया गया कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 और उसमें वो 16 पेज उसमें आ जाएंगे। तो ऐसे चैप्टर वाइज रहेंगे तो बच्चों को पढ़ने की सुविधा रहेगी। हालांकि ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है, पर ऑनलाइन में दिक्कत ये है कि एक बार आपको अगर कभी चैप्टर 1 आपने ले लिया तो आपको व्हाट्सएप पे लेना पड़ेगा और व्हाट्सएप पे उसको संभाल कर रखना पड़ेगा। और यदि नहीं संभाला तो अगली बार जब साइट पे जाओगे तो दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये बार बार डाउनलोड वाली समस्या रहती है। और फेसबुक पेज पे ऐसा रहेगा, एक बार जो इमेज अपलोड हो गई उसको आप कभी भी देख सकते हो। डायरेक्ट अगर मान लो 10 चैप्टर हैं और 9th चैप्टर का देखना है तो आप डायरेक्ट 9th चैप्टर का देख सकते हो। तो मैंने फेसबुक पेज क्रिएट कर दिया है। अभी तो टाइम नहीं मिल पा रहा है और अपने पास मोबाइल का डाटा है,
घर जाके ब्रॉडबैंड कनेक्शन में रहेगा तो धीरे धीरे इस पे काम चालू हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं 9 से 12 की जितनी भी पुस्तकें हैं वो सभी उनके चैप्टर जो है वो PDF मतलब इमेज में अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर ने मुझे कल दिखाया कि उन्होंने फेसबुक पेज भी बनाया है जो सर बता रहे थे, और सेम जो है उन्होंने अपना काम शुरू भी कर दिया है। और कोई बताना चाहता है? सभी साथियों का नमस्कार और हमारे विद्वान मेंटर्स को भी नमस्कार। मेरी कंपनी का नाम है मां नर्मदा एग्रो। हम अभी आप देख रहे हो कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे जो किसान भाई हैं वह ऐसी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं जिसमें कि पेस्टिसाइड्स और रासायनिक खादों का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों से सोयाबीन एक ऐसी फसल है कि जिसमें सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स भी उपयोग में आते हैं और सबसे ज़्यादा उर्वरकों का भी, रासायनिक उर्वरकों का भी उपयोग होता है, जिससे कि धीरे धीरे मृदा की उर्वरक क्षमता कम होती जा रही है। और साथ ही सोयाबीन के भाव भी बराबर से नहीं मिल पाते हैं। कृषि लागत इतनी बढ़ गई है कि किसान जो है वो सोयाबीन को घाटे का सौदा समझ रहे हैं और उससे दूर हट करके अब वो नए प्रकार की नगद फसलों की ओर अपना रुख अपना रहे हैं। लेकिन मिट्टी तो अभी भी बीमार है, उसमें रासायनिक और उर्वरकों का इतना उपयोग हो चुका है कि उसकी उत्पादक क्षमता कम हो गई है। तो मेरी कंपनी ये चाहती है कि हमने ये सोचा है कि हम रासायनिक उर्वरक या रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर जैविक कीटनाशक और जैविक उत्पादों का, जैविक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग का उत्पादन करें और हम उनको किसानों तक उपलब्ध कराएं। अभी हम बड़े किसानों तक हम अपनी प्रोडक्ट को ले नहीं जा सकते, क्योंकि बड़े किसानों को समझाना या बड़े किसानों तक पहुंचना बहुत कठिन काम है। हमारा जो अभी कस्टमर होगा वह छोटे किसान, साथ ही गार्डनिंग करने वाले जो हमारे प्लांट लवर्स होते हैं, उन तक हम पहले पहुंचने की का काम करेंगे। हमारी कंपनी जो है वो वर्मी कंपोस्ट तैयार करेगी और इसके लिए हम लिटरेट भी करेंगे। हम कुछ उत्साही किसानों को जो गांव से में होंगे और उनको हम वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, जैसे शासन ने पहले नाडेफ के नाम से वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बहुत प्रयास किए थे, लेकिन वो केवल ज़मीनी स्तर पर रह गए। हम उनको खाद बनाने और खाद को हम अपनी तरफ से पैकेजिंग करके बेचने के लिए भी हम उनको मोटिवेट करेंगे। हम नीम, हमारे निमाड़ क्षेत्र में नीम का उत्पादन, नीम के पेड़ बहुत हैं, तो नीम की जो निमोली होती है उसका तेल का उपयोग, उसके पत्तियों से हम कीटनाशक बनाएंगे। गुड़ जो होता है, पुराना गुड़ सड़ा करके उसका भी हम कीटनाशक बनाएंगे। हम ऐसे वनस्पतियों का भी उपयोग करेंगे जिनका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। तो हम पहले हमारे छोटे किसानों तक जो नगद फसल पैदा करते हैं, नगद फसल से मतलब जैसे मैडम ने बताया था कि सब्जी उत्पादन छोटे स्तर पर होता है लेकिन उसमें पैसा नगद मिलता है, तो हमारे किसान जो होंगे, कृषक भाई, वो उस ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में यूरिया, DAP, फास्फेट, नाना प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग होता है, जिससे कि उत्पादन तो होता है लेकिन क्वालिटी नहीं आती है और फल सब्जियां बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है जो कीटनाशकों के प्रयोग से। तो यदि हम उन पर वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वाश जो हम नीम के तेल से, अपने अरंडी के तेल से, फिर पुराना छाछ जो किसानों के पास उपलब्ध रहता है, वो उपयोग में नहीं आता है, तो हम उसको भी प्रिजर्व करके और उसको भी कीटनाशक में परिवर्तित करके हम छोटे किसानों तक पहले पहुंचाएंगे जो सब्जी उत्पादन कर रहे हैं। उसके पश्चात हमारी पहुंच होगी, उसके बाद हम प्लांट लवर्स के पास जाएंगे। प्लांट लवर्स जो कि अपने घरों में वो भी फूलों के
फूल की कैरी फूल के पौधे लगाए हैं लेकिन फूल फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो फ्लावरिंग कर अच्छी फ्लावरिंग हो इसके लिए भी वो ऐसे रासायनिक तत्वों का प्रयोग करते हैं जिससे कि फ्लावरिंग बढ़ जाती है। तो कुछ समय तक फ्लावर बनते हैं लेकिन वो गल जाते हैं। लेकिन हम फ्लावरिंग के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे वर्मी तरीके मतलब जैविक तरीके से, तो उसकी फूलों की लाइफ भी ज़्यादा रहेगी और साथ ही वो ज़्यादा अच्छे से खिलेंगे। तो मेरा मतलब जो मॉडल है वो छोटे किसान और साथ ही प्लांट लवर्स तक के लिए। पर जब हम इसमें सक्सेस हो जाएंगे, जब हम एक कंपनी को फैक्ट्री लेवल पर ले जाएंगे, जहां हमारे पास एक बहुत बड़ा एरिया होगा, जहां हम कृषि अपशिष्ट का भी उपयोग करेंगे। हम किसानों से उनके खेतों में उत्पन्न फेंका जाने वाला कृषि अपशिष्ट जो है, जैसे कि अभी मैं जिस एरिया में सर्विस कर रहा हूँ, हमारे उधर सब्जी उत्पादक क्षेत्र ज़्यादा है। तो जैसे गोभी निकलती है तो आपने देखा गोभी का फूल आपके पास आता है, लेकिन उसके ढेर सारे पत्ते वो सड़क पर फेंक देते हैं, और वो जब सड़ते हैं तो इतनी बदबू मारते हैं कि आप वहाँ से निकल नहीं सकते, आप गोभी खाना छोड़ दोगे। तो हम उस गोभी के उस वेस्ट को डंप करेंगे, उसको खाद में परिवर्तित करेंगे। हम इसके लिए उन किसानों को सिखाएंगे भी, और यदि हमारी बात पे हमारे साथ में शामिल हो जाएंगे तो हम उनको इस प्रकार से जैविक तरीके से और कृषि अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित या जैविक उर्वरक के रूप में परिवर्तित करने के लिए हम प्रेरित करेंगे और उनको अपना पार्टनर बनाएंगे। थैंक यू। बहुत अच्छा आइडिया है सर। तो हम प्रोटोटाइप की बात कर रहे थे, राइट? तो पेन पेपर पे प्रोटोटाइप बनाने की बात हुई, मैम ने बनाया भी, सबने अपने आइडियाज़ बताई। तो आजकल बहुत सारे टूल्स ऐसे आए हैं, तो मैं जब भी कहीं स्टूडेंट कैंप के लिए जाता हूँ, स्टूडेंट बूट कैंप के लिए, तो मैं उनसे उसी टाइम पे प्रोटोटाइप बना लेता हूँ, क्योंकि आजकल ऐसे टूल्स हैं। तो सर अभी एक क्विक शेयर, सर 1 मिनट, सर आपके लिए है, आप आ जाइए 1-2 मिनट के लिए आगे आ जाइए। तो सर जब अपनी आइडिया बता रहे थे क्विक फिक्स, तो मैंने एक टूल यूज़ करके उनका प्रोटोटाइप बना दिया है। तो मैं बस आपको दिखाता हूँ। ये है सर की वेबसाइट, होम हेल्प विदाउट द हैसल, और कौन सी सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगे: प्लम्बिंग, क्लीनिंग, इलेक्ट्रिशियन, हैंडीमैन, कारपेंट्री, गार्डनिंग। अभी ये मैंने बस 2 लाइन का प्रॉम्प्ट डाला था इसमें, 2 लाइन, हार्डली 8 से 10 वर्ड्स मैंने यूज़ किए होंगे। ये वेबसाइट है और ये AI है, उसको बोलते हैं lovable.ai, lovable.ai। ये वेबसाइट अगर आप यूज़ करते हो और उसमें आपको बिजनेस आइडिया बताते हो, तो एक 4 से 5 मिनट में आपका पूरा प्रोटोटाइप रेडी हो जाता है, और अगर उसको पे करते हो तो आपकी वर्किंग वेबसाइट भी बन सकती है। तो सर ने जो भी आइडिया बताई थी क्विक फिक्स की, वो क्विक फिक्स की आइडिया का प्रोटोटाइप यहाँ हमने रेडी किया। ये देखिए सारी सर्विसेज वगैरह, उनको क्या क्या चाहिए, कैसे वो वर्क करेगी। अगर किसी को बुक करना है तो वो बुक नाउ पे क्लिक कर सकता है। अभी ये पूरा एक्टिव तो नहीं है, बट जैसे जैसे हम प्रॉम्प्ट देते जाएंगे उतना उतना वो अच्छा बनता जाएगा। अगर हम बस एक ही है कि इसमें एक दिन में हम 5 ही प्रॉम्प्ट दे सकते हैं अगर फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें ज़्यादा बहुत अच्छी वेबसाइट बनानी तो हमें पे करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है। बट एटलीस्ट प्रोटोटाइप बनाने के लिए स्टूडेंट को अगर प्रोटोटाइप बनाना है, उनको दिखाना है कि उनका प्रोडक्ट कैसे दिखेगा या उनका सर्विस मॉडल कैसे दिखेगा, तो एक 5 मिनट में lovable.ai यूज़ करके वो अपना प्रोटोटाइप बना सकते हैं। ठीक है सर, ये आपका प्रोटोटाइप रेडी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो आप भी अगर ऐसे करना चाहते हो, आप मोबाइल फ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हो lovable.ai, और अपना खुद का प्रोटोटाइप भी बना सकते हो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अंजना शुक्ला, PM श्री शासकीय हाई स्कूल जवाहर टेकरी से। मैं और मेरी पूरी टीम एक यूनिक प्रोडक्ट लेकर आपके सामने उपस्थित है। हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नाम है कचरा नहीं जिंदगी गिफ्ट करे। ये कार्ड है हमारे पास, साथ साथ इसमें हमने एक यूनिक ऑप्शन और लिया है, जो है हमें जो साइबर फ्रॉड से बचाता है। अब वो कैसे बचाएगा, उसके लिए आपके पास एक QR कोड आ रहा है, आप जब स्कैन करेंगे तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी। बेसिकली जो हमारा प्रोटोटाइप है इस प्रकार का कार्ड होगा। मैम हम QR कोड स्कैन करके देखते हैं कि आपने क्या किया है।
ये हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें ये जो दूसरा ऑप्शन है जो साथ में मिलेगा आपको, साइबर फ्रॉड से सुरक्षा। हम लोग अभी देख रहे हैं, सभी हम लोग शासकीय कर्मचारी हैं, सभी लोग प्रिंसिपल हैं, और अभी लगातार 1 महीने से हमें यही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आप साइबर कैंप लगाएं। साइबर फ्रॉड से बच्चे कैसे सुरक्षित रहे, समाज कैसे सुरक्षित रहे, उसकी जानकारी हम पुलिस विभाग के माध्यम से दें, अपने बच्चों को हर जानकारी से अवगत कराएं, क्योंकि इतना समय नहीं होता। और एक ये वास्तविक घटना है, हमारे स्कूल में भी कई लोगों के साथ घटित हो चुकी है, और उस स्थिति में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है कि सामने वाला कुछ भी नहीं कर सकता। उस समय 2-3 मिनट जो रहते हैं वो आपका एजुकेशन, आपका माइंड, सब कुछ फेल हो जाता है। आप जो भी फ्रॉड करने वाले हैं वो जिस तरीके से बताएंगे आप वही काम करने लग जाते। मेरी एक फ्रेंड है अर्चना मिश्रा, इंग्लिश की टीचर है और बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं वो। उनके पास कॉल आया तो हम लोग जब तक जाए, उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और वो बिल्कुल वही फॉलो करने लगी जो बता रहे थे। फिर हमने बड़ी मुश्किल से वो रूम खुलवाया और उन्हें बोला कि ये सब फ्रॉड हो रहा है, और उनको 2-3 जानकारियाँ दी कि ऐसा हुआ है, पर तब तक उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उनका जो बीपी है वो एकदम से बढ़ गया था और उनको डॉक्टर को तुरंत दिखाना पड़ा। तो ये जो घटना होती है अचानक, इसमें हम अपना विवेक खो देते, हमें कुछ समझ में नहीं आता। साइबर कस्टडी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकते। साइबर अवेयरनेस के लिए हमारे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्योंकि हम टीचर हैं तो हम अपना बिजनेस अपने विद्यालय लेवल पर ही स्टार्ट करना चाहते हैं। ये हमारा एक कार्ड है जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट से बनेगा, जो वेस्ट कागज़ है उससे बनेगा। इसमें हम थोड़ा सा इको इन्वायरमेंट देने के लिए हम जो बीज हैं उसको लगाएंगे, साथ साथ हम एक टैग देंगे। उस टैग पर हमारा ये जो QR कोड है वो रहेगा। हमने ये सोचा है कि 100 कार्ड यदि 1000 घरों तक पहुँचेंगे तो 1000 लोग साइबर अवेयरनेस प्राप्त कर लेंगे। हमने इसकी लागत भी निकाली है। ये कार्ड हमको 8 रुपये का पड़ेगा और ये 35 रुपये में बिकेगा। हमारे कस्टमर भी 5 टाइप के हमने ढूंढ लिए हैं, जो सर जब बताएंगे कि नेक्स्ट में जो भी प्रोसेस करनी है वो हम उसमें फिर बताएंगे। अभी तो जो हमारा टाइप था कि किस प्रकार से कार्ड बनेगा, तो ये हमारा बायोडिग्रेडेबल कार्ड है जिसमें हम लिखेंगे कि कचरा नहीं जिंदगी गिफ्ट करे। साथ साथ साइबर अवेयरनेस जो है वो फ्री रहेगी। अच्छा, ये गिफ्टिंग कार्ड रहेगा, मतलब यस गिफ्टिंग कार्ड रहेगा 35 रुपीज़ में, हाँ, जिसमें आप साइबर अवेयरनेस भी करा रहे अवेयरनेस भी देंगे। और सर समय के हिसाब से जो भी अवेयरनेस चाहेंगे वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे, क्योंकि अभी साइबर अवेयरनेस चल रहा है। हो सकता है भविष्य में और कोई सी प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए भी अवेयरनेस कर सकते हैं हम। थैंक यू सो मच मैम, वेरी गुड। जैसे हमने कल वो डिज़ायर करके एक हमने देखा था कि हम 2-3 आइडिया को एक साथ मिक्स करके कैसे एक नया प्रोडक्ट बना सकते, वही मैम ने किया है कि उनका पर्पज़ कुछ अलग है। पर्पज़ उनका यह है कि साइबर अवेयरनेस हो जाए, साइबर फ्रॉड के अगेंस्ट लोगों में अवेयरनेस हो जाए। और उसके लिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया है कि एक ग्रीटिंग कार्ड या गिफ्ट कार्ड आप बना सकते हो, और गिफ्ट कार्ड के साथ साथ वो साइबर अवेयरनेस भी हो जाएगा। 2 थिंग्स, क्लबिंग 2 थिंग्स टुगेदर, एंड एक नया प्रोडक्ट उन्होंने लेके आए। तो बहुत अच्छी आइडिया है मैम आपकी, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका जो भी ये इनिशिएटिव है वो अच्छे लेवल तक आप लेके जाओ। सो एक हमने देखा कि बहुत अच्छे आइडियाज़ आपके पास है, सब लोगों के पास, और अभी आप बिजनेस प्रोसेस भी समझने लगे हो कि अगर किसी को स्टार्टअप बनाना है तो किस तरीके से उनको वो आगे लेके जाना पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर से ये सेम प्रोसेस है वो रिपीट करना चाहता हूँ। कोई भी स्टूडेंट आपके पास आता है और वो अगर बोलता है कि उसे बड़ा होके एक एंटरप्रेन्योर बनना है, एक बिजनेसमैन बनना है, तो आपको ये प्रोसेस सारी पता है। अब ये आप अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हो कि अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो ऐसा नहीं कि जस्ट आपने प्रोडक्ट बनाया और बेचना स्टार्ट कर दिया।
जनरली बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसा करते भी है, बट उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि फेल्योर के रेट ज़्यादा होता है। क्यों लोग फेल क्यों होते हैं? अगर हमें सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बनाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट आए या जो भी कोई आपके साथ सलाह करने आ जाएगा, तो आप उसको आज समझा सकते हो कि ये प्रोसेस अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम कभी फेल नहीं होगे, राइट? तो क्या प्रोसेस है? जी सर, क्या प्रोसेस है? सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में हमें कस्टमर को समझना है और हमें डिज़ाइन थिंकिंग की प्रोसेस फॉलो करनी है। क्या है डिज़ाइन थिंकिंग की प्रोसेस, क्यों फॉलो करनी है? बिकॉज इट स्टार्ट्स विथ एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर, और उसके बाद में हम आपका सोल्यूशन लेके आएंगे। सोल्यूशन के बाद प्रोटोटाइप बनेगा और प्रोटोटाइप के बाद जो आगे की प्रोसेस है हम बताएंगे। सर प्लीज़। जी सर, नमस्ते सभी को। सर मैं एक स्टूडेंट के रूप में आपके सम्मुख उपस्थित हुआ आज। कुछ साल पहले जब मेरी जॉब नहीं लगी थी, मैं काफ़ी परेशान रहता था। फिर सोचा हमारे शहर के पास में पीथमपुर है तो वहाँ फैक्ट्री में चला जाए, वहाँ काम कर लिया जाए और अपनी आगे की गृह गृहस्थी चलाई जाए। लेकिन वो भी किसी कारणवश हो नहीं पाया। तो हमारे घर पे डबल मंजिल बना हुआ था, एक सिंगल रूम है, वहाँ हम बैठे रहते और सोचते रहते कि आखिर हमें करना क्या है। काफ़ी सोचने के बाद हमें ये लगा कि कुछ अपना करना चाहिए। फिर कई रातों तक हम जागे, सोचे ऐसा क्या किया जाए जिससे इनकम हो सके, क्या लोगों की नीड है, क्या ऐसा काम है जो किया जा सके, प्लस उसमें पैसा कम से कम लगे, क्योंकि हमारे पास पैसा था नहीं। ऐसे में बहुत सोचने के बाद हमारे सामने एक बिजनेस आया। मुझे नहीं पता, एक स्टूडेंट के समान सर मैं वो बिजनेस आपके सामने रखना चाहूँगा और आपके पैरामीटर पर उसे चेक करना चाहूँगा कि अगर मैं जॉब में नहीं होता तो वो सही होता या गलत होता। हम ये सोच रहे थे, नॉर्मल सर, लोकल जगह से आता हूँ इसलिए नॉर्मल बातें कर रहा हूँ। हमने सोचा कि क्यों ना लोगों का लिए सब्जी का बिजनेस किया जाए। थोड़ा समझाने का प्रयास करूँगा। सब्जी में लाता मंडी से थोक में और उसे हर घर तक पहुँचाता सिर्फ 10 मिनट में। वो कैसे होता? सभी लोगों के व्हाट्सएप, मेरे नगर देपालपुर का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया बड़ा हमें, जिसमें मेरा कांटेक्ट होता और कोई भी महिला, कोई भी पुरुष उसमें कॉल करता या मैसेज करता कि मुझे 1 किलो भिंडी चाहिए, 10 मिनट में उसके घर पहुंच जाती, वो भी बाकायदा पैकिंग में, वो भी साफ और स्वच्छ। दूसरा, इससे ये होता कि जो महिलाएं अपने पति से नाराज होती है कि जब मैं बोलती हूँ आपको कि सब्जी लेकर आइए, आप खाली हाथ चले आते हैं, और हर महिला की एक ही समस्या उठती है, सुबह उठ के बनाना क्या है। ये घर घर की समस्या है। शायद इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मेरे मन में ये ख्याल आया था ये बिजनेस, और कम से कम मैंने इसके लिए 50 लड़कों से बात भी कर ली थी जो मेरे लिए ये काम करते और घर घर जाके डिलीवरी करते। आदरणीय, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पैरामीटर में क्या मेरा है? सर ये कब की बात है? कितने? ये करीबन अगर मैं बात कहूँ तो 4 साल पुरानी बात है सर। अगर 4 साल पहले आप इम्प्लीमेंट करते तो जेप्टो हमें 4 साल पहले ही मिल जाता जी। इतना टाइम हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपने शुरू करने की ज़रूरत थी सर, क्योंकि आज जो जेप्टो है ये भी यही कर रहा है। बाकी सारी चीज़ें तो जो हम जो किराना बोलते हैं वो सब तो मिलता ही है उस पर, बट सब्जियां भी मिलती हैं और कटी हुई पैकिंग करके अच्छे से मिलती है। तो आप सारी सब्जियां आप ऑर्डर करते हो, 10 मिनट में अपने पास आते हैं। तो सेम आइडिया है जी। लगता है उन्होंने आपके आइडिया उठा ली सर। बस यही आइडिया था सर। तो आपके पैरामीटर में मुझे बताइए, क्या मैं सक्सेस हो पाता या नहीं? बिल्कुल सक्सेस हो पाते। अगर जेप्टो जैसी कंपनी सक्सेसफुल है हाँ। तो आप भी सक्सेसफुल हो पाते, और अभी भी मतलब लेट नहीं है। बेटर लेट देन नेवर। तो आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो सर, और अभी भी वो चल सकता है, क्योंकि जेप्टो के एक लिमिटेशंस है। कोई भी कॉम्पिटिटर्स है
कोई भी कंपनी होती है उसके एक लिमिटेशन होते हैं। आप अपने जगह पे अगर स्टार्ट करते हो, अपने यहाँ अगर आप सक्सेसफुल होते तो आप अच्छा जी, कमा सकते हो। लोकल एरिया से आते हैं तो शायद मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं ज़्यादा सर, थे। लोकल एरिया वगैरह ऐसा कुछ नहीं सर। बिजनेस अभी हमारे इंडिया में या हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम ये है, वो प्रॉब्लम मुझ में भी है कि हमने ना बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप ये चीज़ों को बहुत हाईली डेकोरेटेड करके रखा है कि बड़े बड़े वर्ड्स है, हमारे स्लाइड्स में भी बड़े बड़े वर्ड्स है, और ये हमारा फेल्यूर है एज ए एडुकेटर कि हम उसको सिंपल लैंग्वेज में छोटे छोटे तबकों तक पहुंचा नहीं पा रहे, क्योंकि वो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। कि वाई चाइना इज़ अहेड ऑफ अस। हमारी इकोनॉमी, हम $5 ट्रिलियन की बात करते हैं, पता है, हम बोलते हैं कि हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, बनना है। यू नो व्हाट इज चाइनाज इकोनॉमिक साइज? कितना होगा? $28 ट्रिलियन। $28 ट्रिलियन, हम $5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। और यूएसए की इकोनॉमी का साइज क्या होगा? 50, 60, $90 ट्रिलियन। हमारे कितने गुना है? चाइना भी हमारे 5-6 गुना आगे है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो इंग्लिश चलती भी नहीं है, फिर भी एंटरप्रेन्योर्स है। घर घर में सेमीकंडक्टर्स वहाँ घर घर में बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ जैसे लिज्जत पापड़ ने घर घर पापड़ बनाने का ये गया था, प्रयोग किया था और वो सक्सेसफुल हो गया। वहाँ घर घर में पापड़ नहीं बनाते, घर घर में सेमीकंडक्टर्स चिप्स बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक जो खिलौने हमारे यहाँ मार्केट में आते हैं वो घर घर में बनाते हैं। तो चाइना हमसे आगे क्यों बढ़ गया? 1980s में चाइना और हम साथ में ही थे। उनकी इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी सेम ही थी। उनकी पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा थी, हमारी कम थी। और ऐसे 30-40 साल में ऐसा क्या हुआ कि वो हमसे बहुत आगे बढ़ गए? ना उनको इंग्लिश आती है, ना वहाँ इंग्लिश चैनल चलते हैं, ना वहाँ इंग्लिश मूवीज चलती है। तो वहाँ जो चलता है वो उनकी मैंडरीन जो लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में उन्होंने सब कुछ करा, घर घर तक सारी टेक्नोलॉजी को पहुँचाया। अभी हम जो ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, यही है कि लैंग्वेज की कोई नहीं है। आप कहाँ से आते हो, क्या होते हो, ये बात ही नहीं है। हम ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो हम ज्ञान ले रहे हैं, वो अगर छोटे छोटे तबकों तक अगर पहुंच जाए, अगर जो लोग हिंदी में बात करते हैं, नॉर्मल मराठी में बात करते हैं फॉर एग्जांपल, या तेलुगु में बात करते हैं, उन लोगों तक अगर हम पहुंचा सके, उन स्टूडेंट्स तक अगर पहुंचा सके, तो हमें वहाँ से बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आ सकते हैं। तो जैसे ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये इस तरह से कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, और ऐसे शिक्षक जो हमें मिले हैं और आपने निश्चित तौर पर हमें बिल्ड कर दिया है, और हम भी जाकर बच्चों को बिल्ड करेंगे। और याद रखिएगा कि इंसान सब कुछ कर सकता है अगर उसकी सोच हो और अगर बुलंद इरादे हो तो सब कुछ कर सकता है। मैं पूरे स्टाफ को, आईपीसी को और स्पेशल मेरे प्राचार्य अशोक गहलोत जी को धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इस ट्रेनिंग के लिए भेजा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। पीएम श्री मालूद, जिला खंडवा से मैं सुषमा शर्मा। मैंने एक प्रोडक्ट तैयार करने की विचार किया है, और जो लघु उद्योग के अंतर्गत आता है। बेरोजगार महिलाएं जो कि गांव में स्वयं सहायता समूह में काम करती है, उनके लिए अच्छा सा रोज़गार है जो हम चालू करके और उनको काम से लगा सकते हैं। हर्बल साबुन, नीम, हल्दी और अपनी मुल्तानी मिट्टी, शहद, इनसे बना हुआ प्रोडक्ट है। समस्या ये है कि आज अधिकांश लोग रसायन युक्त साबुन के बजाय प्राकृतिक और हर्बल उत्पादों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में सुरक्षित और प्राकृतिक साबुन की मांग लगातार बढ़ रही है। इसका समाधान ये है कि हम घर पर ग्लिसरीन, साबुन बेस, नीम, हल्दी, शहद और मुल्तानी मिट्टी जैसे प्राकृतिक पदार्थों से गुणवत्तापूर्ण हर्बल साबुन तैयार कर सकते हैं। विशेषताएं इसकी यह है कि प्राकृतिक सामग्री से निर्मित त्वचा की सफाई देखभाल के सहायक, आकर्षक रंग, सुगंध और पैकिंग के साथ, और उपहार के रूप में भी ये देने के लिए उपयुक्त रहेगा। और घर में जो महिला हैं, युवा और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। प्रारंभिक निवेश लगभग
3,000 से 5,000 तक लागत, और एक बार में लगभग एक दिन में 40-50 साबुन तैयार हो सकते हैं। एक साबुन की कीमत 20 से 25 आएगी, उसे आप 40 से 50 रुपए के बीच में बेच सकते हैं। बिक्री के जो माध्यम होंगे हमारे कस्टमर, स्थानीय किराना दुकान, ब्यूटी पार्लर, और ख़ास करके 15 से 30 वर्ष की लड़कियां या महिलाएं, सोशल मीडिया के माध्यम से संवेदनशील त्वचा वाली लड़कियां, महिलाएं, और निष्कर्ष ये निकलेगा कि उद्योग के कम निवेश में सरल तकनीक और स्थानीय संसाधनों पर आधारित ये रोजगार रहेगा, और गुणवत्ता, स्वच्छता और आकर्षक पैकेजिंग का ध्यान रखा जाए तो इसकी मार्केटिंग 100% होगी। भविष्य की योजना ये रहेगी कि आगे चलकर हम केवल नीम हल्दी साबुन ही नहीं बल्कि एलोवेरा, गुलाब, चंदन का भी साबुन निर्मित करके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ धन्यवाद मैम, ये बहुत अच्छी आइडिया है, क्योंकि हमें जैसे हम कल बात कर रहे थे ना कि बहुत क्लेम किए जाते हैं कि एलोवेरा जेल वगैरह ये सारी चीज़ें बोला जाता है, बट एक्चुअल में उसे होता नहीं है। उसमें केमिकल कंटेंट ज़्यादा होता है हमारे पास जो सोप्स आते हैं, और नेचुरल मिलता नहीं है। तो कल भी आपने वही बात की थी कि नेचुरल सच में कैसे मिलाया जाए, और आप उसी के ऊपर काम करो तो बहुत अच्छी आइडिया है। सो चलो, पहले दिन थोड़ा सा ये था कि हम क्या आइडिया करेंगे, ये सब क्यों हो रहा है, और आज अगर देखो तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे मैं सुन रहा हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो कुछ तो असर हो रहा है, और यही असर को हमें सारे बच्चों तक पहुँचाना है। तो हम अभी यहाँ रुकते हैं। प्लीज़, ओवर टू यू। We will now break for tea. Participants are requested to collect the refreshment and return on time for the next sessions.